So friends, we are continuing our lecture series on portfolio management. So far we have covered illustration number 1 and 2, laying a solid foundation in this critical chapter. Right. So let's move on to illustration number 3, which focus on a very important concept, that is calculating the return on a portfolio. Right. Remember, understanding how to determine portfolio returns is always essential for assessing the performance of multiple investments and making sound financial decisions, right? And this illustration will teach you how to apply weighted average, right? How to apply weighted average effectively and analyze the impact of individual assets on overall portfolio performance. And so be sure to follow the steps closely and take notes as we work through this practical and exam relevant illustration. Okay, so as you know that the question is all about to calculate the return of a portfolio which has 60% invested in Tata consultancy service and the rest in RIL. The probable return in different conditions of the economy are as follows. So different conditions given that condition of the economy, growth केस में क्या होगा, stable केस में क्या होगा and recession केस में क्या होगा, right? Probability of occurrence given and return on TCS percentage given, return of RIL percentage, individual return of TCS and individual return of RIL percentage also given. So find out only the return of the portfolio. तो हमको सिर्फ पोर्टफोलियो का रिटर्न फाइंड आउट करना है. तो पोर्टफोलियो का रिटर्न फाइंड आउट करने से पहले हमको इंडिविजुअल रिटर्न भी कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए let's follow step by step approach. Okay, so see, as you know that solution to illustration number 3, right? So we first need to calculate the expected return for Tata consultancy service based on the probabilities and returns under different economic conditions, right? So as you know that expected return का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ पी आई इंटू आर आई. समेशन ऑफ पी आई इंटू आर आई ये है एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला, वेयर पी आई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच कंडीशन एंड आर आई मीन्स रिटर्न ऑफ TCS in each conditions, right? Each condition. So now accordingly here in question given that 0.5 is the probability of occurrence, तो ये हो जाएगा 0.50 इंटू रिटर्न ऑन TCS का परसेंटेज कितना है 16%, तो 0.5 से 16 को मल्टीप्लाई करना है. सिमिलरली 0.40 के साथ मल्टीप्लाई करना है रिटर्न ऑन TCS दैट इज 12 एंड 0.10 इंटू रिटर्न ऑन TCS दैट इज -6 को मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो ये आ जाएगा TCS का रिटर्न 0.50 इंटू 16 दैट इज 8, 0.40 इंटू 12 ये आ जाएगा 4.8. सिमिलरली -6 इंटू 0.10 ये आ जाएगा -0.6, राइट? ये आया रिटर्न ऑफ TCS, राइट? एंड ये हो जाएगा टोटल रिटर्न ऑफ TCS. टोटल रिटर्न ऑफ TCS कितना हो जाएगा -0.6 प्लस 4.8 प्लस 8 ये हो जाएगा 12.2, राइट? 12.2 ये है स्टेप 1. Similarly in step 2 we need to calculate returns for RIL shares, right? Similarly probability of occurrence given 0.50, 0.40, 0.10, तो सिमिलरली ये हो जाएगा 0.50, 0.40 एंड 0.10. मल्टीप्लाई करना है रिटर्न ऑन TCS, रिटर्न ऑफ RIL दैट इज 12
and 14 and -2, right? 0.50 into 12, 0.40 into 14, 0.10 into -2. तो इसको अगेन मल्टीप्लाई करना है. 0.50 into 12 ये आ जाएगा 6, 0.40 into 14 ये आ जाएगा 5.6 एंड ये हो जाएगा 0.10 into -2 into 0.40 तो ये हो जाएगा -0.8, राइट. एंड अगेन ये हो जाएगा -0.8 प्लस 5.6 प्लस 6 हो जाएगा 10.8, राइट. सर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है. ये हो जाएगा -2 इंटू 0.10 ये हो जाएगा -0.2 तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5.6 प्लस 0.2 ये हो जाएगा 11.4%, राइट. 11.4%. अब TCS एंड RIL का इंडिविजुअल रिटर्न आ गया है. TCS का है 12.2 एंड RIL का है 11.4%. नाउ मूव ऑन टू स्टेप 3. स्टेप 3 में क्या कैलकुलेट करना है? पोर्टफोलियो रिटर्न, राइट. पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करना है. पोर्टफोलियो रिटर्न. और पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए इंडिविजुअल रिटर्न्स, राइट, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट किए. इंडिविजुअल रिटर्न्स फॉर TCS दैट इज 12.2 एंड इंडिविजुअल रिटर्न्स फॉर RIL दैट इज 11.4%. सिमिलरली पोर्टफोलियो रिटर्न भी इजीली हो जाएगा. तो पोर्टफोलियो रिटर्न का जो फॉर्मूला है वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेट ऑफ TCS into return of TCS plus weight of RIL into return of RIL. मीन्स जो वेट्स है वो वेट्स को रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न, राइट. नाउ ये है फॉर्मूला टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न. वेट ऑफ TCS इंटू रिटर्न ऑफ TCS प्लस वेट ऑफ RIL इंटू रिटर्न ऑफ RIL. ये है पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला. पहले हमको इंडिविजुअल रिटर्न फाइंड आउट करना है, देन पोर्टफोलियो रिटर्न इजीली कैलकुलेट हो जाएगा. नाउ राइट, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो हो जाएगा. हियर इन क्वेश्चन गिवन दैट return of a portfolio which has 60% invested in TCS and the rest in RIL. This means 60% in TCS means 0.60 into रिटर्न कितना आया था TCS का, दैट इज 12.2, राइट. तो 0.60 इंटू 12.2 प्लस हियर इन क्वेश्चन गिवन दैट 60% इन्वेस्ट इन TCS एंड द रेस्ट इन RIL. तो 60% TCS में इन्वेस्ट हुआ है, मतलब जो रिमेनिंग है दैट इज 40% वो RIL में इन्वेस्टमेंट हुआ है. तो इसलिए यहाँ पर 0.40 के साथ मल्टीप्लाई करना है RIL का इंडिविजुअल रिटर्न. RIL का इंडिविजुअल रिटर्न कितना है? 11.4%. वेरी इजी. तो यहाँ पर RIL का इंडिविजुअल रिटर्न जो है दैट इज 11.4%, इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट. तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो. रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कैलकुलेट के टाइम ऑलवेज वेटेड एवरेज के हिसाब से कैलकुलेट होता है, ना कि इंडिविजुअल रिटर्न के हिसाब से, राइट. तो ये आ जाएगा 0.60 इंटू 12.2 ये आ जाएगा 7.32 प्लस 0.40 इंटू 11.4 ये आ जाएगा 4.56, राइट. अब आ जाएगा पोर्टफोलियो रिटर्न 7.32 प्लस 4.56, 7.32 प्लस 4.56 तो ये आ जाएगा 11.88, राइट. तो हमको क्या करना है, पहले कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर ईच स्टॉक यूजिंग प्रोबेबिलिटीज एंड रिटर्न्स, राइट. एंड देन multiply the weights of each stock by their respective expected returns and add the weighted returns to find the portfolio return, right. तो मैंने यहाँ पर
पहले स्टेप 1 में TCS का रिटर्न कैलकुलेट किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन TCS कैलकुलेट किया, राइट। तो TCS का रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोबेबिलिटी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन के अंदर दिया गया था 0.50, 0.40, 0.10, वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के साथ रिटर्न का जो रिटर्न का परसेंटेज है वो रिटर्न का परसेंटेज के साथ प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया, राइट। तो मेरा रिटर्न आ गया TCS का, दैट इज 12.2। एंड सिमिलरली रिटर्न फॉर RIL ऑफ शेयर्स भी कैलकुलेट किया, probability given in question 0.50, 0.40 and 0.10 and multiply किया individual return of RIL, that is 12, 14 and -2, right। तो 12, 14 and -2, तो individual expected return आ गया RIL का, यह है expected return of RIL का expected return आया 11.4%, राइट। सो एंड इंडिविजुअल रिटर्न कैलकुलेट करने के बाद स्टेप 3 में पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट किया। तो पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट का फॉर्मूला है वेट ऑफ TCS इंटू रिटर्न ऑफ वेट ऑफ TCS इंटू रिटर्न ऑफ TCS प्लस वेट ऑफ RIL इंटू रिटर्न ऑफ RIL, राइट। तो अकॉर्डिंगली जो वेट्स है वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, 60% इन्वेस्ट हुआ था TCS में एंड द रेस्ट इन RIL अकॉर्डिंगली। तो 0.60 TCS को इन्वेस्ट किया हुआ था, तो 0.60 इंटू इंडिविजुअल रिटर्न ऑफ TCS 12.2 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट हुआ था दैट इज 40% मीन्स 0.40 इंटू इंडिविजुअल रिटर्न ऑफ RIL, राइट। इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो आया 11.88%, right। So this is it, all about illustration number 3, and illustration number 3 is all about to calculate portfolio return and expected return of individual stock and portfolio return. So always remember that while calculating portfolio return you must need to consider weighted average, right। So the illustration number 3 जो है, this illustration number 3 will teach you how to apply weighted average effectively and analyze the impact of individual assets on overall portfolio performance, right। So this is it all about illustration number 3, and इसके next video में illustration number 4 को solution illustration number 4 को अच्छे से conceptual clarity के साथ solve करेंगे, okay। So this is it all about from my side. Thank you so much for your support, thank you so much for your patience and happy studying.